जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। Okay, today we are going to start chapter number 11. Chapter number 11 entitled as the equations of change for non-isothermal systems. Chapter number 11, the equations of change for non-isothermal system. जी आप लोगों को अवैस अहमद, जी सर। जी बेटा आपको स्क्रीन शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है? जी सर हो रही है। अच्छा, हमजा रियाज, यस सर। जी बेटा आपको स्लाइड शो हो रही है? यस सर हो रही है। प्लीज माइक ऑफ कर लें। सो हमने आज जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11. Actually, this chapter number 11 is following the same strategy as chapter number 3. When we started the shell momentum balance, and then we apply the shell momentum balance on different systems in chapter number 2. Then we started chapter number 3 in momentum balance. The chapter number 3 was the equation of the change. We considered a volume element like this as shown in the figure, and then we say that the fluid is entering throughout all the 6 phases of this fluid element. The fluid is also flowing through the x-axis. Similarly, the fluid is flowing through the y-axis, and fluid is flowing through the z-axis, and there exist all the 3 components of the flow. That may not be possible in the practical situation, but to develop a general equation, we consider a general system. And then, if you remember, we develop the equation of change. Here comes the substantial derivative and the other terms. So the approach was that we can apply the equation of change, or we can apply the shell momentum balance. There were 2 approaches to solve a momentum balance problem. One approach was to apply the shell balance,
And the second approach was to use the equation of change by using the appropriate equation of change in appropriate axis, and for the appropriate coordinate system we can get the same result. We have to see either it is a cylindrical coordinates, we have to see either these are the rectangular coordinates or the spherical coordinates. Then for each coordinate system we have set of equations. So you have to revise all these previous, because you know your all previous syllabus is also a part of the final exam, and all previous syllabus would also be the part of your viva, the part of your quiz, sectional quiz that is going to be conducted next week, inshallah. Maybe your CR has conveyed a message to you regarding this. जी फैजान नदीम, यस सर। जी बेटा आपको समझ लगी है कि हमने क्या स्टार्ट किया? यस सर। ओके बेटा, CH 216 216 CH 216 सेक्शन बी। यस सर। जी बेटा, आप इक्वेशन ऑफ चेंज जो थी वो क्या होता था? इक्वेशन ऑफ चेंज जो थी वो क्या चीज थी? जी मोहम्मद फजल अफजाल, मोहम्मद अफजाल 216 अपना माइक ऑफ कर दें। जी अफजाल 216 अपना माइक ऑफ कर दें। जी मोहम्मद अफजाल। आमिर अरशद, आमिर अरशद। जी अहमद शाह साहब, अहमद शाह साहब। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी बेटा बताएं जरा, वो जो चैप्टर 3 में इक्वेशन ऑफ चेंज जो हमने स्टडी की थी वो क्या चीज थी? इक्वेशन ऑफ चेंज के अंदर हम लॉस लगाते थे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ चेंज। तो बेसिकली बेटा जी जो इक्वेशन ऑफ चेंज होती है दैट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द मोमेंटम बैलेंस, देयर इज इक्वेशन ऑफ चेंज फॉर द एनर्जी बैलेंस, that is called energy of equation, and that is the topic, today topic, the first topic, the energy equation. What is the energy equation? The energy equation is nothing but a very general, a generalized form of energy balance equation. This is the equation of change also. So there is a equation of change for the momentum balance, there is equation of change for the energy balance, and there is equation of change for the mass balance. That would be the third part of our TP course. So now in the chapter number 11 that I have told you that the title of the chapter is equations of change for non-isothermal system. So non-isothermal system means the temperature will be changing, and obviously when we are dealing with the heat transfer, obviously the heat transfer will take place if there is the different temperature zones in the system. If a system is isothermal, no temperature change, then how the heat transfer can take place? So obviously whenever there is a heat transfer, it means there is the change in the temperature in the system. Different parts are at the different temperature. Therefore the heat is going to be transferred. Therefore this is the equation of change for the non-isothermal system. So we have considered a fluid volume element having the dimensions delta x, delta y, and delta z. So you can see we have the dimensions delta x, we have the dimensions delta y, and we have the dimension delta z.
So the volume of this element will be delta x into delta y into delta z. And now we are considering that the fluid is flowing through x-axis. The fluid is flowing through along z-axis, and the fluid is also flowing in the third direction. So as we are going to develop a very general equation of energy, first step would be write a general energy balance equation. So you must need to pay attention to this general energy balance equation. The general energy balance equation says on the left hand side the first term is rate of increase of kinetic and internal energy if we consider this system as shown in the figure. तो इस सिस्टम में बेटा रेट ऑफ इंक्रीज, और ऑब्वियसली सिर्फ रेट ऑफ इंक्रीज लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये रेट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा. तो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे बेटा देखें तो राइट हैंड साइड पे पहली टर्म है नेट रेट ऑफ काइनेटिक एंड इंटरनल एनर्जी एडिशन बाय कन्वेक्शन. मींस कन्वेक्शन के जितनी नेट का वर्ड जो है इधर शो कर रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. ठीक है. सो नेट रेट ऑफ काइनेटिक एंड इंटरनल एनर्जी एडिशन बाय कन्वेक्शन. सो हमने ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया था बेटा कि जब एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा होता है या गैस जो है वो फ्लो कर रही होती है तो उसने जो एनर्जी कैरी की होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी होती है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की जो बल्क वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है. अगर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक कार जो है या मोटरसाइकिल सड़क के ऊपर भाग रही है तो उसकी बल्क वेलोसिटी की वजह से जो उसके पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी. और इंटरनल एनर्जी का भी आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इंटरेक्शन और केमिकल, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी. So internal energy is the energy of the molecules और काइनेटिक एनर्जी इज द बल्क एनर्जी. तो वो कह रहा है कि ये दोनों एनर्जी जो कन्वेक्शन के थ्रू सिस्टम के अंदर एंटर होंगी और लीव होगी. तो नेट का वर्ड जो है वो इन माइनस आउट दोनों को शो कर रहा है. ठीक हो गया बेटा. नेट का जो वर्ड है वो इन माइनस आउट दोनों को शो कर रहा है. उसके बाद आ गया जी सेकंड टर्म जो है दैट इज नेट रेट ऑफ हीट एडिशन बाय मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट. नेट रेट ऑफ हीट एडिशन बाय मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट. तो इस आउट का जो सोर्स है वो कंडक्शन है कि पहला था कन्वेक्शन के थ्रू इन आउट होगी तो हमने लिख दिया नेट रेट ऑफ काइनेटिक एंड इंटरनल एनर्जी एडिशन बाय कन्वेक्शन. सेकंड हम लिख रहे हैं रेट ऑफ हीट एडिशन बाय मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट दैट इज द कंडक्शन. तीसरी टर्म है बेटा रेट ऑफ वर्क डन ऑन सिस्टम बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म. तो अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स तो बेटा हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. Molecular mechanism is also responsible for heat transfer, that is called convection, and molecular action, molecular mechanism is also responsible for work done on the system, that is called stresses, work done by stresses. और इस molecular work done में जो था वो दो टर्म्स आ जाती थी. कौन कौन सी दो टर्म्स होती हैं जी molecular work done में? बताएं मुझे. मॉलिक्यूलर वर्क डन में कौन सी दो टर्म्स होती हैं बेटा? जी अब्दुल वासे. मॉलिक्यूलर और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर. नहीं बेटा जी. जी अब्दुल वासे. सही है. प्रेशर और वो जो स्ट्रेस वाली. वेरी गुड. प्रेशर एंड स्ट्रेस. तो मॉलिक्यूलर वर्क डन में जो था ये दो चीजें जो हैं वो होती हैं. ठीक है. एंड द फाइनल टर्म
The final term is the rate of work done on the system by external forces. Rate of work done on the system by external forces. This external force may be usually the gravity. So बेटा ये एक जनरल इक्वेशन है कि किसी भी सिस्टम में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक या इंटरनल एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा। पहली जो टर्म है बेटा वो कन्वेक्शन की है, दूसरी टर्म जो है वो मॉलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट की है, तीसरी जो टर्म है वो मॉलिक्यूलर वर्क डन की है, और चौथी जो टर्म है वो एक्सटर्नल वर्क डन की है। ठीक है, और इसके अंदर कोई टर्म होनी चाहिए, कोई आइडिया किसी का हो, इसके अंदर कोई और एनर्जी की टर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एनीबॉडी? सर हीट जनरेशन के लिए। जी बेटा जी, कौन बात कर रहा है बेटा जी? रैन बोलो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा कि इसके अंदर हीट जनरेशन या हीट डिप्लीशन की टर्म जो है वो होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर हमने अभी सोर्स टर्म जो है वो कोई नहीं लिखी। ठीक है, वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी हीट सोर्स टर्म हियर। ठीक है, बट इट शुड बी देयर। एंड प्लीज आंसर मी, ये जो इक्वेशन दैट वी हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, इज दिस इक्वेशन फॉर अ steady state system or this equation is for unsteady state system? The equation we have written is for steady state or for unsteady state? Unsteady state. Yes, very right, because we have not done equal to 0. If we put that is equal to 0, it means we have done for the steady state system, but we have write it for the unsteady state system. ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी, चाहे वो कन्वेक्शन के थ्रू एंटर हो, चाहे वो कंडक्शन के थ्रू एंटर हो, चाहे वो एक्सटर्नल वर्क डन हो, और चाहे वो मॉलिक्यूलर वर्क डन हो, ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी जब एक सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं तो ये सिस्टम की काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। ये सारी जो इक्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिस्टम के ऊपर नेट कन्वेक्शन, नेट कंडक्शन, नेट एक्सटर्नल फोर्स और जो नेट मॉलिक्यूलर फोर्स जो एक्ट कर रही होती है, वो सारी की सारी सिस्टम की काइनेटिक या इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही होती है इफ देयर इज नो हीट जनरेशन और डिप्लीशन इनटू द सिस्टम। ओके, अगेन ये वही इक्वेशन बेटा हमने दोबारा आपके सामने मैंने लिखी है। Now the objective is to write the mathematical forms of this equation. We want to write the mathematics for each term, because an engineer we not only deal with the concepts but we have to quantify the concepts in form of the mathematical equations, ताकि डिजाइन कर सकें, पैरामीटर्स निकाल सकें, मशीन्स की चीज़ों की ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। तो ये तब भी कर सकता है इंजीनियर जब उसके हाथ में कोई मैथमेटिकल मॉडल होता है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है। तो इसलिए जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, सिस्टम डेवलप करते हैं, कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, तो इंजीनियर का नेक्स्ट काम होता है जी कि उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एंड इंटरनल एनर्जी। सो जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 रो वी स्क्वायर। बेसिकली ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा होगा फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हाफ एम वी स्क्वायर की बजाय मैं हाफ रो वी स्क्वायर लिख दूं तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया बेटा, इट मींस के हाफ रो वी स्क्वायर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम की बेस पे हो जाएगी, प्लस रो इनटू यू। रो इज द डेंसिटी एंड यू इज द इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। जब यू जो कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास है, अगर मैं इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रो इंटू यू क्या बन जाएगा? अगर यू जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट मास है, अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अपने माइक ऑफ कर लें। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यू जो है ये इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास है,
लेकिन जब इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई बेटा कि ये जो टर्म है हाफ रो वी स्क्वायर और रो इंटू यू, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो कर रही है। हाफ रो वी स्क्वायर इज द बल्क काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, और रो इंटू यू जो है वो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को शो कर रही है। सो इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है टाइम के साथ, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि ओवरऑल इसकी यूनिट्स क्या बन जाएंगी। ओवरऑल इस पूरे टर्म की यूनिट्स जो होंगी वो क्या होंगी। शहजाद साहब इधर हैं, शहजाद, आमिर, जुबैर, heat flow per unit time, हीट फ्लो पर per यूनिट unit टाइम। time, जी बेटा बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंडिंग किया आपने। तो क्योंकि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो गया, टाइम का डेरिवेटिव ले लिया है, तो अब ये सारे की एनर्जी जो होगी वो होगी एनर्जी, यानी आप कह लें कि जूल पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकंड जो होगी वो इसके यूनिट्स होंगी। सो ये हमने लिखा है कि इस पूरे जो सिस्टम हमने कंसीडर किया हुआ है, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो इंटरनल और काइनेटिक एनर्जी में रेट ऑफ इंक्रीज है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम इस टर्म को देखेंगे, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। रेट ऑफ वर्क डन ऑन द, यानी कि सिस्टम के ऊपर हो सकता है ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी की फोर्स का रेट ऑफ वर्क डन जो है वो किस तरह लिखना है। किसी बच्चे को रेट ऑफ वर्क डन का फार्मूला याद है जिसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व थी? एनी स्टूडेंट कैन टेल मी द फार्मूला? सर एफ डॉट वी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, शाबाश। सो रेट ऑफ वर्क डन इज एफ डॉट वी। अगर आपको याद हो तो हमने ये डिराइव किया था कि रेट ऑफ वर्क डन जो होता है वो जो फोर्स जो एक्ट कर रही है उसको सिस्टम की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर अगर ग्रेविटी फोर्स है बेटा तो ये एफ जो होगा ये बन जाएगा डब्ल्यू, वेट, ठीक है, और वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के। वेट होता है एम जी के, ठीक है। सो जो एम है वो है रो इंटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। सो डब्ल्यू जो था वो एम इंटू जी होना था, तो m की जगह तो लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और g और साथ v का डॉट प्रोडक्ट जब लिया तो ये vx इंटू जी एक्स, वी वाई इंटू जी वाई एंड वी जेड इंटू जी जेड आ गए, क्योंकि टोटल सिस्टम के लिए लिख रहे हैं ना। वी आर कंसीडरिंग ऑल द थ्री डायरेक्शंस, देयरफॉर जब f डॉट v करना है तो मैथ तो बाहर आ गई, तो g और v का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं कि x कंपोनेंट का x कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट का y के साथ प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट का z के साथ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो ये आ गया रेट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये किस तरह आया? ये आया फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स जब ग्रेविटी की होती है तो वेट होता है, तो वेट में एम जी आता है, तो एम को हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया है और जी और डी का जो है ना डॉट प्रोडक्ट लिख लिया। सो ये दो तो लिख लेंगे। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि ये तीन टर्म्स हैं, कन्वेक्शन है, कंडक्शन है और मॉलिक्यूलर वर्क डन है। कोई बता सकता है कि इन तीनों टर्म्स के लिए कोई एक सिंबल यूज होता हो? combined energy, small d, जीशान आप बताएं, जीशान। जीशान नहीं है इधर, रेहान, रेहान साहब, मोहम्मद रेहान साहब। sir can I tell? यस सर, यू Sir कैन टेल। combined energy value, volume, जी आप combined energy vector, sir combined energy vector, sir abrar, जी अबरार साहब आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा एक तो अबरार एक्स सी आर है, एक वो दूसरा अबरार भी है शायद हाफिज अबरार, वो इधर है दूसरा अबरार, अबरार मोहम्मद अबरार दूसरा, ओके।
वो भी अटेंड नहीं कर रहा। फहद कुरैशी इधर है, वो भी लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा। फहद कुरैशी। जी आमिर जुबैर साहब। यस सर। जी बेटा जी, ये आप एग्री करते हैं कि ये जो कन्वेक्शन है, मॉलिक्यूलर हीट ट्रांसपोर्ट है और मॉलिक्यूलर वर्क डन है, इन तीनों के लिए ये तीनों टर्म जो हैं ये ई के अंदर छुपी हुई हैं। यस सर, ये तीनों चीज करनी है। ठीक है, कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स। तो हम अब ये कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स का, क्योंकि ये इन आउट हो रही है ना, तो हम जो है वो एक्स एक्सिस के लोंग भी लिखेंगे, वाई एक्सिस के लोंग भी लिखेंगे, जेड एक्सिस के लोंग भी लिखेंगे, एज यू कैन जी सी सर। ऑन द स्लाइड। ठीक है, सो ई एक्स इन एट पॉइंट एक्स माइनस ई एक्स आउट एट पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द एक्स एक्सिस। तो बेटा जब ये एक्स एक्स अलोंग फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो राफे मुझे बताएं कि इसको कौन सा एरिया इनकाउंटर हो रहा है। सर जब एक्स एक्सिस से करेगा तब वो डेल्टा वाई और डेल्टा जी करेगा इसके ठीक साथ। है ना बेटा, तब वो जो एरिया आएगा वो ये वाला आएगा जो कि जहां पर ब्लैक एरिया शो किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक डिमेंशन जो है डेल्टा एक्स है, दूसरी डिमेंशन जो है एक डिमेंशन डेल्टा वाई है, दूसरी डिमेंशन जो है वो डेल्टा जेड है। सिमिलरली जो आउट हो रहा होगा तो उसको यही एरिया मिल रहा होगा। तो राफे साथ ये भी बता दें कि एरिया से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। सर क्योंकि ये फ्लक्स के अंदर है ना, तो इसको चेंज करने के लिए फ्लक्स में से। वेरी गुड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसकी हर टर्म जो है वो रेट ऑफ एनर्जी है या रेट ऑफ वर्क डन है। एनर्जी पर यूनिट टाइम है या वर्क पर यूनिट टाइम है, सेम होती हैं दोनों। सो इसलिए हमने ये फ्लक्स है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली ई वाई इज द कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलोंग जो फ्लूइड मूव कर रहा है तो वो अपने साथ कंबाइंड जो एनर्जी लेकर जा रहा है वो इन के ऊपर ई वाई एट वाई होगी और आउट के ऊपर वाई प्लस डेल्टा वाई होगी, और इसको जो बेटा एरिया मिल रहा होगा वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड मिल रहा होगा। सिमिलरली ई जेड मीन कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स एंटरिंग अलोंग जेड एक्सिस, या इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं अगर आपको मोमेंटम बैलेंस वाला याद हो कि ई जेड मीन एनर्जी कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स अक्रॉस एन एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो ई जेड को हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स अलोंग अलोंग जेड एक्सिस, ई जेड अलोंग जेड एक्सिस, या कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स अक्रॉस एन एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, क्योंकि ये जिस एरिया से पास कर रहा होगा वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई होगा। तो ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है जो हम पहले डील कर चुके हैं। ठीक हो गया बेटा? तो बेटा यहां तक सबको समझ लग गई है? जी रमजान साहब, चौधरी रमजान साहब। जी तैमूर साहब। जी सर लग रही है। ये अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं या रमजान की तरफ से जवाब दे रहे हैं? सर दोनों की तरफ से दे रहा हूँ, पता नहीं वो है कि नहीं है। अच्छा तो सर उसके लाइट चली गई थी, चले लाइट का चले। अच्छा बेटा ये देखिए, अब इन सारी टर्म्स को बेटा, इन सारी टर्म्स को जब हम इसमें एनर्जी में इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे एंड डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी, इन तीनों टर्म्स को बेटा हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे एंड डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई द वॉल्यूम एंड टेकिंग द लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 एंड डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है वो देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो टर्म है वो सिंपली यही वाली टर्म है, लेकिन जब इसके अंदर हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम वाली टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी और पार्शियल आवर पार्शियल टी 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो यू ये बच जाएगा। तो बेटा आपने हर टर्म की अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है। याद रखें कि यू जो है ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, पर यूनिट मास है। जब डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तब ये पर यूनिट वॉल्यूम बन गया, और रो वी स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, और टाइम का डेरिवेटिव है तो रेट बन जाएगा। तो ये हर टर्म की जो सिग्निफिकेंस है वो आपने याद रखनी है। सिमिलरली जब हम ये वाली टर्म देखेंगे ग्रेविटी वाली, तो इसके अंदर भी जो है ये वॉल्यूम जो है खत्म हो जाएगा,
जब वॉल्यूम खत्म हो जाएगा तो पीछे रो v डॉट जी बन जाएगा। ये v x g x v y g y और v z g z को मैं v डॉट g लिख सकता हूँ। v डॉट g का मतलब होगा कि वेलोसिटी और g का डॉट प्रोडक्ट, x कंपोनेंट इंटू x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट इंटू y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट इंटू z कंपोनेंट। बाकी ये जो दरमियान वाली टर्म रह गई है ये आप देख सकते हैं कि e ऑफ x एट पॉइंट x माइनस e ऑफ x एट पॉइंट x प्लस डेल्टा x, जब ये डिवाइड होगा तो इसके नीचे डेल्टा x आ जाएगा और लिमिट्स डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो लेंगे तो ये जो टर्म होगी ये पार्शियल ex और पार्शियल x बन जाएगी। यानी चेंज इन द फ्लक्स अलोंग x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सिमिलरली ये वाली टर्म जो है वो चेंज इन द फ्लक्स ऑफ y एक्सिस ey पार्शियल y बन जाएगा एंड पार्शियल ez और पार्शियल z बन जाएगा। ये मैथमेटिकल स्टेप आप लोग पहले भी कई दफा कर चुके हैं। और ये नेगेटिव साइन जो है बेटा, ये नेगेटिव साइन एक बाहर आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल की डेफिनेशन होती है कि x प्लस डेल्टा x वाली पहले आती है और x वाली टर्म बाद में आती है, तो क्योंकि यहाँ पर उलट है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो होगा वो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर नॉन आइसोथर्मल and unsteady state system without considering the heat source term. Okay, next बेटा ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये नेक्स्ट आप देखें कि ये वाली जो इक्वेशन है ये वही इक्वेशन है जो अभी लास्ट स्लाइड में आपने एंड में देखी है। इस इक्वेशन को बेटा मैं लिख रहा हूं एन अदर फॉर्म में। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है ये तो उसी तरह रहेगी, पार्शियल ओवर पार्शियल t 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो u इज इक्वल टू, और आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इनको मैं इसकी फॉर्म लिख सकता हूं डाइवर्जेंस की फॉर्म में, नेगेटिव साइन बाहर, और ये टर्म क्या बन रही है, ये डाइवर्जेंस ऑफ E बन रही है, डाइवर्जेंस ऑफ E बन रही है। जी कौन बताएगा कि डाइवर्जेंस को जो है हम किस तरह ओपन करते हैं? So derivative of x component with respect to x plus y component with respect to y plus z component with respect to z. वेरी गुड बरार साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये e ऑफ x ओवर x, e ऑफ z पार्शियल y, e y पार्शियल y पार्शियल e z और पार्शियल z, तो इनका डेरिवेटिव बन जाएगा डाइवर्जन, प्लस रो बाहर आ जाएगा बेसा, और जैसे मैंने अभी बताया कि ये v डॉट g बन जाएगा। और आप देखेंगे g भी जो है वो बोल्ड में है और v भी जो है बोल्ड में है। ये चीजें क्या शो कर रही है? शो कर रहा है कि ये v जो है ये पूरा वेलोसिटी वेक्टर है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी vx इंटू जी एक्स प्लस वी वाई इंटू जी वाई प्लस वी जेड इंटू जी जेड। तो ये सिंपल बेटा चीज है जो आप एफएससी में पढ़ते रहे। तो इसी इक्वेशन को हमने इसमें लिख लिया क्योंकि ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ जो है इसको रिमाइंड, इसको याद करना आसान है कि आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना रो पार्शियल रो 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो u का पार्शियल डेरिवेटिव है, और राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है, डाइवर्जेंस ऑफ E है और रो vg है। ओके, नेक्स्ट बेटा इसको हम ये करेंगे कि E की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स की डेफिनेशन, तो हमें पता था कि E जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो u इंटू v कन्वेक्शन प्लस पाई डॉट v विस्कस एक्शन, मॉलिक्यूलर एक्शन, वर्क डन बाय मॉलिक्यूलर एक्शन प्लस q। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज सिंपल मैथमेटिकल स्टेप कि ये जो E के जो कंपोनेंट हैं हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस साथ आती जाएगी एंड वी गेट दिस इक्वेशन। सो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे वही इक्वेशन है और राइट हैंड साइड पे जो है ये पहली जो टर्म थी इसकी डाइवर्जेंस बन गई, कन्वेक्शन वाली टर्म की डाइवर्जेंस ऑफ रो v स्क्वायर प्लस रो u इंटू v, देन नेगेटिव साइन आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ Q बन गई। ठीक है जी, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ E है ना तो इसका मीन के E के हर कंपोनेंट की डाइवर्जेंस लेते जाना है। उसके बाद जब पाई को ओपन करेंगे तो आपको पता है कि जैसे अभी एक बच्चे ने बताया था कि पाई जो होता है इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, प्रेशर भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, P और टॉ दोनों होते हैं। तो बेटा इसके अंदर ये डाइवर्जेंस ऑफ पी वी भी आ जाएगा और डाइवर्जेंस ऑफ टॉ वी भी आ जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ पी वी भी आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ टॉ वी भी आ जाएगा। ये कहाँ से आया है? ये जब पाई को ओपन किया तो ये दोनों टर्म इसके साथ जो है ना ये मौजूद होती हैं। देन ये जो रो वी जी है बेटा, ये टर्म जो होगी ये रो वी जी उसी तरह आ जाएगी।
सो हमने किया क्या है बेटा, अगेन इसको देखें कि ये सिस्टम हमने कंसीडर किया है सेम जो कि चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ चेंज फॉर मोमेंटम बैलेंस को अप्लाई करने के लिए हमने सिस्टम कंसीडर किया था। इसके ऊपर हमने एनर्जी बैलेंस की एक इक्वेशन लिखी है और वो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स थी उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। फिर हमने डिफरेंशियल की डेफिनेशन को यूज करते हुए एक इक्वेशन तक पहुंचे थे। फिर हमने इसके अंदर जो ई जो कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स है उसकी वैल्यू पुट करके तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बच गई। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है ये आपको क्या बताएगी, पहली टर्म पार्शियल आवर पार्शियल टी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो यू इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाली जो लेफ्ट अब राइट हैंड साइड पे ये पहली टर्म देखें, ये टर्म हमें क्या बता रही है कि रेट ऑफ एनर्जी एडिशन पर यूनिट वॉल्यूम बाय कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्लीज नोट बेटा कि आपने वेरीफाई करना है कि ये जो टर्म है इसकी यूनिट्स जो होंगी वो रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बनेंगी। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करें कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो हर टर्म है दैट इज इन द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये वाली टर्म जो है ये कन्वेक्शन को शो कर रही है, ये वाली टर्म जो है ये कंडक्शन को शो कर रही है कि रेट ऑफ एनर्जी एडिशन पर यूनिट वॉल्यूम बाय हीट कंडक्शन। ये जो टर्म है ये शो कर रही है रेट ऑफ वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम बाय प्रेशर फोर्स। सो हर टर्म जो होगी वो पर यूनिट वॉल्यूम होगी। ये टर्म जो शो कर रही है ये कर रही है रेट ऑफ वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम बाय स्ट्रेसेस बाय विस्कस फोर्सेस। ठीक है, सो ये प्रेशर फोर्स आ गया, ये विस्कस फोर्स आ गया, प्लस ये जो फाइनल वाली टर्म है रो वी जी ये शो कर रही है रेट ऑफ वर्क डन ऑन द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ चेंज फॉर एनर्जी, equation of change for energy and simply this is called the energy equation. So next हम ये पढ़ेंगे कि हमने इस एनर्जी इक्वेशन की जो है वो मजीद डिफरेंट फॉर्म जो है वो हमने लेकर जानी है। ठीक है, मजीद डिफरेंट फॉर्म जो है हम लेकर जाएंगे और फिर जैसे कि हमने अगर आपको याद हो तो हमने मोमेंटम बैलेंस के जितने भी केसेस किए थे उनको एनर्जी ऑफ इक्वेशन से भी सोल्व किया था, मोमेंटम इक्वेशन ऑफ चेंज फॉर मोमेंटम बैलेंस से भी सोल्व किया था। तो सेम हम यहाँ पर ये प्रोसीजर करेंगे कि चैप्टर 9 में हमने शेल एनर्जी बैलेंस को बेटा स्टडी किया डिफरेंट सिस्टम के लिए, वायर के लिए, न्यूक्लियर सिस्टम के लिए, विस्कस सिस्टम के लिए, केमिकल रिएक्टर के लिए। तो हमने उसको शेल एनर्जी बैलेंस से सोल्व किया था। अब हम क्या कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 में आज आगे हमने क्या किया कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ चेंज फॉर एनर्जी बनाई है कि एक जनरल इक्वेशन होती है जो हर सिस्टम के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, उसकी हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन एंड में डिराइव की है। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम जो है वो डिफरेंट सिस्टम के लिए सोल्व करेंगे, उनको सोल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। सो दिस वाज द टुडे लेक्चर। अच्छा बेटा, यहां तक आपको कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप जो है वो पूछ लें। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अपना हैंड रेज कीजिएगा बेटा प्लीज, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है तो। जी मुशारिब हुसैन। जी मुशारिब नहीं है। जी जैन जवेद। जैन का लगता है कि नेट का प्रॉब्लम है। जी तैमूर असद। जी सर। जी तैमूर अहमद। तैमूर असद बात कर रहा हूँ सर। जी तैमूर अहमद बताए। तैमूर अहमद। जी सुफियान आसिफ। जी सर।
फयान आसिफ बेटा, ये जो एंड वाली टर्म है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये क्या है? जो आपको स्लाइड पे इक्वेशन है उसकी एंड वाली टर्म जो है वो क्या है? सर एनर्जी ऑफ इक्वेशन हमने ड्राइव की है। हाँ जी, ठीक है बेटा। सर इसमें रेट ऑफ काइनेटिक रेट ऑफ एनर्जी एडिशन बाय कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट है, हाँ जी, जो ठीक है। 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो यू से शो किया हुआ है। फिर रेट ऑफ एनर्जी एडिशन बाय ठीक है बेटा, थैंक यू कंडक्शन है। वेरी मच। आप ठीक कह रहे हैं बेटा। साद हैदर, यस साद सर। हैदर, साद हैदर, आवाज नहीं आ रही। आप माइक ऑफ कर लें साद बेटा। साद हैदर माइक ऑफ कर लें प्लीज। जी सईद साहब, खान साहब, सईद खान साहब। सईद खान साहेब। जी नुमान नसीम। जी ऑफ कर लें आप। नुमान नसीम, सईद यस सर। जी नुमान साहब, आप बताएं सर आवाज कट रही है आपके बीच में। माइक ऑफ कर लें नुमान। निम्रा अशरफ, निम्रा अशरफ, निम्रा अशरफ। जी बेटा ये बताएं कि जो एंड वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन का नाम क्या है? तो ये इक्वेशन ऑफ चेंज है, इक्वेशन ऑफ एनर्जी जो एनर्जी हाँ, इक्वेशन ऑफ चेंज फॉर एनर्जी, ठीक कह रही हैं। मोहम्मद जाजिब, मोहम्मद जाजिब, जाजिब साहब ये बताएं कि जो सिस्टम हमने कंसीडर किया हुआ है तो आप सर आपकी आवाज कट रही है। पहले अपना माइक ऑफ कीजिएगा बेटा। महक रफीक, महक रफीक। यस सर। जी बेटा ये जो सिस्टम हमने शुरू किया हुआ है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जी, क्या ये सिस्टम हम पहले भी यूज किया था किसी इक्वेशन को ड्राइव करने में? यस सर, हमने पहले मोमेंटम बैलेंस वो जो था मोमेंटम चेंज, जो एनर्जी चेंज मोमेंटम बैलेंस था वो उसमें ये लगाया था। मेसम नकवी, मेसम नकवी। यस सर। बेटा ये बताएं कि ये जो इक्वेशन है ये स्टेडी स्टेट के लिए है या अनस्टेडी स्टेट के लिए है? सर ये अनस्टेडी स्टेट के लिए, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट टू पॉइंट। हाँ जी, टाइम के साथ चीजें वेरी कर रही हैं, ठीक है बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। नुमान असगर, नुमान असगर, नुमान असगर। जिब्रान यूसुफ, जिब्रान साहब, सीआर साहब। यस सर। आप ऑफ कर लें नुमान बेटा। जी जिब्रान साहब, जिब्रान यूसुफ। एमन अरशद, एमन अरशद। जी बेटा आपको समझ लग गई है सारा यहाँ तक? ओके हो गया बेटा जी। सो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर है बेटा। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रोसीड करेंगे। कल आप लोगों का लेक्चर नहीं होगा, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक हो सकता है मंडे को या यानी कि ट्यूसडे को किसी वक्त भी जो है मैं अपना वो जो कल वाला लेक्चर जो हमारा मिस होगा उसकी मैं मेकअप क्लास आपसे ले लूँगा। ठीक हो गया? इसकी मेकअप क्लास जो है मैं आप लोगों से इसको इसके ले लेंगे। उसके बाद ये है कि YouTube चैनल जो बनाया है वो सब लोगों ने देख लिया होगा। जी अबरार साहब, अबरार यस सर। जी बेटा वो YouTube पे वो आपको वीडियोस जो हैं वो लेक्चर रिकॉर्डेड मिल गए हैं? सर मैं तो सर जो आप पढ़ाते हैं वो साथ साथ ही कर लेता हूँ, मैंने तो लेक्चर देखे नहीं है। चलो वेरी गुड हो गया, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सो बाकी जो है अहमद शाह अब्दुल वासे। यस सर। जी बेटा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गए हैं? सर मैंने अभी देखे नहीं है, वो
एक चले ही है ठीक वीडियो अपने अपलोड है। मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, तो बाकी भी कर दूंगा। जिसको कोई डिफिकल्टी हो बेटा तो वो लेक्चर से जो है वो हेल्प ले सकता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और गिफ्ट भेजा था, वो गिफ्ट मिल गया था? वो बहुत जोर से मिला है। सो ये गिफ्ट जो है बेटा, इसको काइंडली जो है, ये प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, ये वही प्रॉब्लम है जो रिलेटेड हमारे टॉपिक से, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आप इसको जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो हर एक ने बेटा जो अपनी असाइनमेंट जो है, ये जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, डायरेक्ट इस पे मुझे सेंड कर देनी है। आई एम द ऑनर ऑफ दिस एड्रेस tp.assignments.chemical2017@gmail.com। इस पे बेटा सेंड कर देनी है। और अपनी जो ईमेल का जो टाइटल होता है, ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है, और जो आपकी पीडीएफ फाइल होगी, उसका जो नाम आपने रखना है असाइनमेंट 2, उसके बाद अंडरस्कोर आपका रोल नंबर 228 या जो भी है, उसके बाद अंडरस्कोर सेक्शन ए या सेक्शन बी। तो बस ये सिंपल फाइल का नाम इस तरह रख के अपनी जो ईमेल का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट, उसमें भी यही लिख के, तो आपने मुझे जो है ये नेक्स्ट मंडे तक आपको टाइम दे रहा हूँ। आपका कल भी लेक्चर नहीं होना, तो आपके पास काफ़ी दिन है, तो इसको बेटा काइंडली जो है कंप्लीट कीजिएगा। ऑल केसेस, जितने भी केसेस हमने किए हैं चैप्टर नंबर 10 के, उसके बाद एक जो केस है वो एग्जाम्पल 10.6.1 का केस है, वो भी साथ करना है। उसके बाद ये 10A1, A3, A4, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B15, ये वाली आपने प्रॉब्लम जो है करनी है, जो आपके कोर्स में शामिल होगी। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पहले, सबसे पहले कलरफुल डायग्राम जो है ना, अपने हाथ से हर एक प्रॉब्लम की, हर एक केस की आपने जो है वो कलरफुल डायग्राम बनानी है। उसके बाद अपने हाथ से सोल्व करके उसकी एक पीडीएफ आपने जनरेट करके, स्कैन करके अपने मोबाइल में जो है वो पीडीएफ स्कैनर जो है वो इंस्टॉल कर लें। ऐप मोबाइल से स्कैन करके उनको कंबाइन करके, तो आपने मुझे इस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो मंडे को मैक्सिमम 4 बजे तक जो है ना वो आपने सेंड कर देना। तो वो मैं उसके ऊपर लगा दूंगा कि 4 बजे के बाद जो ईमेल आएगी वो मेरे इनबॉक्स में आएगी ही नहीं, वो डायरेक्टली जो है वो स्पैम में चली जाएगी, उसको मैं चेक नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये काइंडली बेटा आप लोगों ने करना है। और आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह तैयार करें। और एक और भी पैगाम आपको मिल गया क्विज के मुतालिक। क्विज से रिलेटेड भी मेरा आपको पैगाम हो चुका। यस सर, मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है क्विज भी आपका हो जाएगा प्रोबेबली। इसको जो है वो नेक्स्ट वीक किसी भी दिन जो है मैं अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो उस क्विज की बेटा तैयारी करें। क्विज में जो है वो पिछला तमाम कोर्स भी शामिल होगा, तो उसकी रिवीजन तो आपने करनी ही है। तो बेटा माशाल्लाह घर बैठ के, आप टाइम माशाल्लाह काफ़ी है आपके पास, तो बैठ के तो सारा जो पिछला है उसकी रिवीजन करें। जो भी पिछला हमने काम किया हुआ मोमेंटम बैलेंस से रिलेटेड, तो सारा काम जो है उसको कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी तैमूर साहब। सर वो आपके लेक्चर मिल गए थे यूट्यूब पे, तो काइंडली अगर हो सके तो दूसरे भी अपलोड कर दीजिए। दूसरे भी कर दूं अपलोड? क्यों? मतलब सर अगर आपके पास अवेलेबल है अभी। यार अवेलेबल है, मैं इंशाल्लाह ताला अभी ट्राई करता हूँ जाके। 2 को कर दिए हैं, वो फिर टाइम लगता है ना, दो मुझे इतने चीज़ों का जी पता सर। भी नहीं है, ये यूट्यूब चैनल ये किस तरह अपलोड करने हैं और वो करने हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं अभी आज कोशिश करूँगा 1-2 और कर दूँ, आज वाला भी कोशिश करूँगा कर दूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक है इस सर। वीक पे ही, इसी वीक पे इंशाल्लाह ताला कर दूँगा यार आप। ओके सर। जी बेटा जी, कोई और क्वेश्चन? अटेंडेंस आप लोगों की हो चुकी है, कोई और क्वेश्चन बेटा जी? सर ये क्विज किस तरह अरेंज करेंगे, वाइवा फॉर्म होगा या क्या शेड्यूल होगा? बेटा जी रिटर्न होगा, तो जिस तरह रिटर्न क्विज असाइनमेंट होगा। होगा, जी बेटा, मैं कह रहा हूँ जिस तरह असाइनमेंट सबमिट तरह फिर टाइम लिमिट होगी हमारे पास। हाँ जी टाइम लिमिट होगी, मैं आप लोगों के साथ हूँगा, तो वो आप लोगों को क्विज दूंगा। उसकी टाइम होगा कि आपने आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना मुझे सेंड करना होगा हाथ से सोल्व करके अपना अपना।
जी बेटा। और जिसको कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम आएगा या कुछ आएगा और जो मुझे किसी वजह से ना सेंड कर सकेगा 15 मिनट के अंदर अंदर या 20 मिनट के अंदर अंदर, तो बेटा उसका फिर क्विज नहीं, उसका फिर वाइवा मैं कंडक्ट करूंगा। उसका जो होगा फिर वाइवा होगा। अगर किसी को इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मुझे सेंड ना कर सकेगा तो उसका जो होगा वो वाइवा होगा। रमजान साहब किधर है? रमजान ऑनलाइन शो हो गए तो गायब है। सर वो जो मैं बात की है उसका ना माइक खराब है। आ गया जी सर। गायब हो जाता है यार। सर वो हैंड फ्री का माइक नहीं चल रहा था इसलिए। किसका, आपका या किसका? सर मेरा नहीं चल रहा था वो हैंड फ्री का माइक, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी जब आपने बुलाया था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद आप किसी का माइक खराब हो गया तो आप जल्दी से माइक ठीक करने चले गए। नहीं नहीं सर। अच्छा, तो आपको बेटा वो असाइनमेंट भी आपने सबको पहुंचा दी थी, वो बच्चे कह रहे हैं असाइनमेंट हमें मिल गई है। और क्विज का भी हमने क्लियर कर लिया कि क्विज भी नेक्स्ट वीक होना है और बहुत थोड़ा सा मुश्किल होना है। और असाइनमेंट की भी लास्ट डेट मंडे है, वो आप लोगों ने इसको जमा करानी है। और आज का लेक्चर भी यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहे हैं, बाकी भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। जी सर। जी बेटा, किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है, कोई बात करनी है? जी सईद खान साहब। कोई और बात किसी ने करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना बेटा? सर नेक्स्ट मंडे को असाइनमेंट एक्सटेंड कर दिया आपने? हाँ जी सर जो मंडे है वो नेक्स्ट मंडे कर दिए कि ये वाला जो कमिंग मंडे है? जी बेटा जी, अभी यही मंडे तक है जनाब, नेक्स्ट मंडे तक नहीं गई यार। यही मंडे वो जो 13 तारीख जो बेटा लिखी है 13, उसी को बेटा होनी है। और सर ये जो क्विज वगैरह होगा ये आप अगर मिड से पहले वाला कर लेते तो काम थोड़ा सा बर्डन हमारे लिए कम हो जाता। नहीं यार, इसको हमने तैयार तो करना ही है, तो इसको कर लेते हैं यार, एक दफ़ा इसकी रिवीजन तो करनी है ना। जी तो सर, बेहतर है वो तो रिवीजन कर दें। सर बाकी बुक्स भी हैं तो उनके भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो काइंडली अगर आप थोड़ा सा कंपेंसेट कर लेते हमारे साथ। नहीं बेटा, इसलिए मैं आपको काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, एक पूरा वीक नेक्स्ट में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसमें जो होगा वो, बल्कि मुझे याद आ गया कि वो जो असाइनमेंट साथ दी हुई है ना, पिछली जो प्रॉब्लम्स दी है वो भी आपने साथ ही कर लेना अच्छी तरह। वो मुझे याद नहीं आ रही थी तो आपने याद करा दी, तो वो सारा इसलिए शामिल होंगे बेटा। जी बेटा जी, और कोई क्वेश्चन? ये अली अहमद कौन है? अली अहमद यूटी, अली अहमद। फिजान अब्बास। यस सर। जी बेटा, क्लियर हो रही है आपको हर बात? सही, बिल्कुल क्लियर हो गई सर जी। सारे टीचर प्लान बना के हमारी एफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे टीचर आपकी एफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, जो अल्लाह को मंजूर होगा यार। जी रेहान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मोहम्मद रेहान जी सर। आप टीचर्स की कोशिशों को नाकाम बना दो यार, मेहनत करो, थोड़ा सा बैठ के टाइम दो स्टडी को, तो सारे टीचर्स की कोशिशों को नाकाम बना दो। जी रेहान साहब। सर वो लिंक नहीं मिला, लेक्चर्स का लिंक हमें नहीं मिला अभी तक। लेक्चर्स का लिंक हमें नहीं मिला यार, साथियों को कहाँ से मिल गया? सर सीआर से भी पता किया है। यार साहब ग्रुप में आया हुआ यार, रमजान ग्रुप साहब में आ गया। नहीं आया हुआ। यस सर। सर ये बच्चे क्या कह रहे हैं? सर मैंने वैसे सर जबरान ये- को भी एक सेक्शन बी के हैं, जबरान को मैंने सेंड कर दिया था जो आपने सेंड किया था। हाँ जी, वो सबके पास है बेटा। वैसे भी काइंडली बेटा अगर आप YouTube पे जाके लिखेंगे ना, मैंने कल वैसे ही ट्राई की थी यार कि मैं अपना नाम लिखता हूँ YouTube पे तो क्या होता है, तो आप ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डॉक्टर हुमायूं महमूद लिखेंगे तो वो आपको दे देगा बेटा। ओके सर, ठीक हो गया? ठीक है, मेरे ख्याल में बेटा इसको हम जो है वो ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह कल लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? और इंशाल्लाह इसका जो मेकअप क्लास है वो नेक्स्ट वीक किसी दिन लूँगा, ठीक है बेटा? तो आप लोगों को मैंने काम दिया है, काइंडली प्लीज़ इसको टाइम लगा के अच्छे तरीके से
ये अल्लाह ताला की कुदरत का कानून है बेटा कि जो जितनी मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला उतना ही फल देता है। तो आप जो है वो हालात पे कभी भी जो है वो बंदा नेगेटिव नहीं देता कमेंट कि ये हालात इस तरह के हैं, ये इस तरह के हैं। ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, बुक आपके पास है, सब कुछ आपके पास है बेटा। आपका जो काम है वो ये है कि अपना टाइम इन्वेस्ट करें, सिंसियर होके मेहनत करने की कोशिश करें बेटा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा बेटा जी। अल्लाह हाफिज़।